ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਪੀਬੀ ਅਗਰਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਅਗਰਵਾਲ, रुचि अग्रवाल, नीरा अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, पूनम जिंदल, अशोक जिंदल, अनु गोयल, जेसी गोयल, हर्षाना अग्रवाल, शान अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, आस्था जैन, चारू अग्रवाल, रितेश अग्रवाल, ऐना गोयल, माधव गोयल ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੀਤਾ ਮੰਦਿਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਰੂਮਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਤਿਆ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਗੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ LIC ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਧਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਪੀਬੀ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਨਵੀਨ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੀਰਾ ਅਗਰਵਾਲ, पूनम जिंदल ਅਤੇ ਅਨੂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰੀ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਵੀਨ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਪੀਬੀ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਸ਼ਾਨਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਸ਼ਾਨ ਅਗਰਵਾਲ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਗਰਵਾਲ, ਆਸਥਾ ਜੈਨ, ਚਾਰੂ ਅਗਰਵਾਲ, ਰਿਤੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਐਨਾ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਮਾਧਵ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
को ज्यादा याद करते हैं। सुख में कहीं ना कहीं हम खो जाते हैं और उसका नाम लेना भूल जाते हैं, पर वो हमेशा सुख और दुख दोनों में हमारे साथ खड़ा रहता है। तो मिलके भजन करें।
अभी बहुत ही सुंदर भजन जो आप लोगों ने सुना, अनंत द्वारे चक्रस्तम न वादम च रुधो, किसी प्रकार से जीवन और मरण यही दो कर्म के सिद्धांत हैं कि जो जीव जन्म लेगा उसकी मृत्यु सत्य है। अभी बहुत ही कितना भी प्रेम, कितना भी सुख, कितना भी धर्म कर्म, कोई भी साधन कर लो, मृत्यु से बचने का कोई भी उपाय नहीं। जो भी जीव या जो भी वस्तु इस संसार के ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त है वो एक ना एक दिन खत्म अवश्य हो जाए। भगवान ने गीता में भी अर्जुन को यही समझाया है कि जीव अपने कर्मों के द्वारा अलग अलग योनियों में भटकते भटकते अंततः शुभ कर्मों को करके मनुष्य योनि प्राप्त करता है, और मनुष्य योनि में भी शुभ कर्मों से शुभ परिवार में, शुभ समाज में उसका विकास होता है, अध्ययन करता है और अपना जीवन यापन करता है, जीवन जीने के मूल्य को प्राप्त करता है। अंत में समस्त प्रकार के सुख को भोगकर सभी को अकेला छोड़कर वह अपने जीवन यात्रा के अगले पथ पे अकेला ही जाना पड़ता है। कबीर जी कहते हैं, कबीरा जब हम आए जगत में, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे थप्पड़ मार के रुलाया जाता है, चेक किया जाता है, बच्चा रोता है, और जब बच्चा रोता है तो पूरे समाज के लोग, उसके माता पिता सभी खुश हो जाते हैं, चलो जीव आया है। परंतु वो बच्चा रोता है, वो क्यों रहता है? प्रथम मास में पिंड होता है, दूसरे में विकास होता है, तीसरे महीने में हृदय गति बन जाती है, चौथे में उसका शरीर का विकास होता है, पंचम में जननांग बन जाते हैं और छठे महीने में उसको गति प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार सप्तम महीने में उस जीव को माता के पेट के अंदर बुद्धि तत्व प्राप्त होता है, और वो उस गंदगी भरी जगह में उल्टा लटका हुआ प्रभु को याद करता है, प्रार्थना करता है, ये प्रभु मैं तुम्हें भूल गया और फिर मुझे इस जीवन मरण के चक्कर में आना पड़ा। और वह जीव अपनी माता के पेट में उल्टा लटका होता है, उसके चारों तरफ मल मूत्र इत्यादि गंदगी होती है, उसमें लटका हुआ वो जीव कहता है, ये प्रभु मुझे यहां से बाहर निकालो, मैं आपका स्मरण करूंगा, ध्यान करूंगा। और इसी प्रकार वो अपने पिछले जन्मों को, कर्म को याद करता है। अंततः उसका जन्म होता है, और जन्म होने के बाद दुनिया के विभिन्न प्रपंचों में पढ़कर वो इसी प्रकार से अपने कर्म को करता है। पूरी सृष्टि में बुद्धि और बोलने की शक्ति मनुष्यों को ही मिली है, प्राणियों को मिली है। बुद्धि के द्वारा वो अच्छे और बुरे की पहचान कर सकता है, सही और गलत का निर्णय कर सकता है, और बोलने के द्वारा अपने भाव को प्रकट कर सकता है। परंतु जीवन की सार्थकता को देखते हुए मनुष्य कई तरह के योग और कई तरह के कर्मों में फंस जाता है। उसे बुद्धि से प्राप्त होता है कि जो शाश्वत नहीं है वो खत्म हो ही जाएगा, एक दिन ये जीवन खत्म हो ही जाएगा, परंतु फिर भी वो मैं मेरा यानी ममता में फंस जाता है
और नहीं करने योग्य भी कर्म करता है। और इसी प्रकार एक दिन न जाने कैसे काल का बुलावा आता है और अपने समाज को, अपने घर को, अपने परिवार को बिलखता हुआ, रोता हुआ छोड़ के चला जाता है। परंतु हिंसा मनोभाव न जाए कम चाक हो। प्राणी का संबंध तभी तक होता है जब तक वो धरती पर है। शरीर से प्राण निकलने के बाद प्राणी का संबंध इस दुनिया में किसी से नहीं होता। जीवात्मा अनंत थी, अनंत है और अनंत ही रहेगा। जीव का यही भेद है। जितने भी हम कर्म करते हैं उन सभी को भगवान को ही अर्पण करना चाहिए। भगवान का ही सिमरण करना चाहिए कि अंततः ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर के द्वारा ही प्रदत्त बुद्धि, गुरुजनों का आशीर्वाद के द्वारा ही हम इस जीवन को सफल बना सकते हैं। जो आत्मा आज हमारे बीच इस नश्वर शरीर को छोड़कर अपने समस्त कर्मों को भोगकर ब्रह्मलीन हो गई है, ईश्वर के चरणों में उत्थान हो गई है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उस संस्कृत परिवार को बहुत ही सुंदर मति शक्ति बरते और जीवात्मा को प्रभु अपने चरणों में विराम दे। ओम नमो भगवतं सदैवृंदावन्ते सर्वो नमो नारायण नमः केशवाय नमः गोविंदाय देवो नमो नमः। प्रभु चरਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਪੀਬੀ ਅਗਰਵਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਦ ਕੁ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ और परिवार ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ बहुत ही सदमा पहुंचा गए। नवीन जी ने ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ किस तरह वो अपनी पोती ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ और ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ और घंटे सवा घंटे ही वो ऐसा पाना वापरिया कि उसकी भी तौर पर सानू विछोड़ा दे गए। गुरबाणी कहती है केल करेंदे हंज नूं अचिंते बाज पे तिस रब दे केलां विसरियां, जो मन चित न चेते सन साई गल्लां रब दियां। बिल्कुल इंज ही सच हो गई गल कि जिवें बगला कोई शिकार लिए बैठा होवे ते शिकार नूं कोई हंज चक के लै जाए तो सारा कुछ खिल्लर बिल्लर जाए। सो परमात्मा दे रंग ने जो इस दुनिया ते आया है उसने जाना है। मौत एक अटल सच्चाई है, मरण लिखाए मंडल में आए, जीवन साचे माई। ये आत्मा जो आती है तो जीवन सजाती है, लेकिन अपना मरना उपरों लिखा के नाल लैके आती है। असी भी सब चलनहार हैं, वारो आपो अपनी सब ने असी एक दिन जाना है। लेकिन जिस परिवार नूं विछोड़ा हुंदा है और खास करके माँ का विछोड़ा, कवि ने कहा है माँ वर्गा कणशामा रुख, माँ वर्गा कणशामा बूटा मैनू नज़र ना आया। इस तो छां उधारी लैके रब ने स्वर्ग बनाया। अगर किसी भी रिश्ते की समाजिक रिश्ते की परमात्मा नाल तुलना हुंदी है कदे भी, तो वो माँ का रिश्ता है। तो तुसी समझ सकते हो इस वक्त नवीन
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੀਰਾ, ਪੂਨਮ ਜਾਂ ਅਨੂ ਜੀ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੀਵ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਗਿਆਵਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਨ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਫ ਮਾਤਾ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਜੀ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਮਾਤਾ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1940 ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਰੂਮਲ ਅਗਰਵਾਲ ਔਰ ਮਾਤਾ ਸਤਿਆ ਦੇਵੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਮ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਕੇ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੁਲਵਾੜੀ ਸਜਾਈ। 3 ਬੇਟੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਔਰ ਬੇਟਾ ਨਵੀਨ ਫੁਲਵਾੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਸਨ, ਅਡੋਲ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਬਲ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸક્ષਮ ਸਨ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਨਵੀਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 4 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ BA ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਗਵਾੜੇ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਕਮਲਾ ਨਹਿਰੂ ਕਾਲਜ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮਠ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ 1963 ਚ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ LIC ਏਜੰਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਔਰ 1963 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ LIC ਦਾ ਸਮਝੋ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰੇਮ ਭੂਸ਼ਣ ਲਾਲ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਠ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਵਕਤ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ, ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ LIC ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਔਰ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਉਹ ਜੀ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਫੁਲਵਾੜੀ ਕੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ, ਹਰਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੈ, ਚਾਰੂ ਹੈ, ਆਸਥਾ ਹੈ, ਰਿਤੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਮਤ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਬੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮਾਦ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਆਈਸ਼ਰ ਵੋਲਵੋ ਦੇ CEO ਨੇ। ਦਮਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਜਿੰਦਲ ਜੀ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੈਂਕਰ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਈ 'ਚ ਸੈਟਲਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮਾਦ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ JC ਗੋਇਲ ਜੀ, ਉਹ ICICI ਪ੍ਰੋਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੇਧ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ, ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਨਵੀਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ
और कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान उन्होंने हार्ट अटैक भी हो गया उस वेले। और इन्ने उन्होंने इंडोमिटेबल विल सी कि इन्नी उन्होंने विल स्ट्रोंग सी। 2001 और 21 साल उन्होंने कैंसर भी सर्वाइव किया और हार्ट अटैक वर्गी भयानक बीमारी भी उन्होंने सर्वाइव की और हमेशा खुश रहते सन, हमेशा धर्म करम के कामों च लीन रहते सन। सब तो वड्डी गल कि अपने काम प्रति निष्ठावान सन। तुसीं देखो 1963 के वो एंटरप्रेन्योर ने, उद्यमी ने, एक सफल गृहिणी, सफल मां, सफल उद्यमी, ये उन्होंने पहचान है। ऐसे माता जी शकुंतला पीबी अग्रवाल जी के निधन ते जिथे सानू सबना नू शोक है, उत्थे सानू सबना नू उन्हां दे जीवन तो सेध लैण की जरूरत है कि अगर असी निष्ठावान होके अपना कर्म करिए तो साडा जीवन जरूर ही सफल हो जाता है। श्रीमती शकुंतला पीबी अग्रवाल की पवित्र और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज जो शोक सभा बुलाई गई है उसमें विराजमान सभी गणमान्यों का मैं नवीन अग्रवाल जी और उनके परिवार की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। जीवन और मृत्यु ये इस सृष्टि के दो नियम हैं। जिस जीव का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अटल है, हम सब जानते हैं। और इस जीवन में सुख और दुख ये दो पहलू एक सिक्के के समान हैं कि जहाँ जब तक हमारा जीवन है तब तक हमारे साथ सुख और दुख है। कहते हैं कि सुख को बांटने से सुख बढ़ता है और दुख को बांटने से दुख घटता है। शायद इसी कारण से जो ये प्रथा चली आ रही है हमारे समाज में कि जब कोई परिवार के अंदर अच्छा शगुन होता है तो हम सब इकट्ठे होते हैं और उस समय को हम लोग बहुत उत्साहित होकर इकट्ठे मनाते हैं। और जब किसी परिवार में ऐसी दुखद घटना होती है तो हम सब इकट्ठे होते हैं ताकि उस दुख को हम लोग मिलके क्षीण कर सकें। आज हमारी आंटी श्रीमती शकुंतला पीबी अग्रवाल हमें छोड़कर चली गई हैं। मुझे याद है कि बचपन से ही, क्योंकि मैं और नवीन केजी क्लास से इकट्ठे पढ़े हैं और हमारा एक दूसरे घर आना जाना रहा है, और जो शख्सियत, जो प्रतिबिंब नवीन ने आंटी में देखा है वो मैंने भी देखा है। उतने दुख हमें भी हुआ जब 9 तारीख को अकस्मात ही आंटी हमें छोड़ के चली गई। आंटी के बारे में मेरे बड़े भाई मुखिंदर जी ने आप सबको बताया कि वो बहुत ही तेजवान थी, बहुत ही दृढ़ संकल्प थी और बहुत ही बुद्धिमान थी। मुझे ये अच्छे तरह से याद है कि उसने हमेशा, उन्होंने नवीन को या कभी मुझे भी ज़रूरत पड़ी तो हमेशा हमें बहुत उत्साहित किया और हमारा खूब ढाढ़स बढ़ाया कि बेटा तुम लोग ये कर सकते हो, तुम्हें ज़रूर करना चाहिए। और हमारी दीदियाँ तीनों यहाँ बैठी हैं, जीजाजी लोग बैठे हैं, उनका आशीर्वाद है, सब सफल हैं, उनका नाम इस समाज में रुतबा खूब है। और समाज में कहते हैं कि जो पिता का एक ओहदा है वो एक वट वृक्ष की तरह है और जो माँ है वो उसकी छाया है। इस परिवार का जो वट वृक्ष है आज से कुछ अरसा पहले हमसे बिछड़ कर चला गया, लेकिन इस माँ ने उसकी छाया बनके हमें 9 तारीख तक अपने आंचल में रखा। लेकिन मैं ये फिर से इस परिवार को कहूँगा कि वो जो छाया है वो आज चाहे हमारे बीच में प्रकट नहीं है, लेकिन उसका आशीर्वाद जो है वो हमेशा इस परिवार पे बना रहेगा। और मैं ये कामना करता हूँ और अरदास करता हूँ श्री चरणों में भगवान के कि उनकी आत्मा को स्थान दे, शांति दे और परिवार को खूब सफलता दे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।
ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਮੂਹ परिजन, मुखिंदर जी और सियाल जी ने जिस तरह पहला विचार साझे किए है, साडे पूजनीक माता जी शकुंतला जी जो कि 9 तरीक को सानू सदीवी विछोड़ा दे के गए ने। 1999 और 90 दीयां गल्लां जदों असीं आके इत्थे LIC ज्वाइन की और प्रेम भूषण अग्रवाल जी ने जो इस इंडस्ट्री को सपोर्ट की या जो किसी ऑफिसर जो कि इस शहर दे विच आया उसकी जो सपोर्ट की, कली इंडस्ट्री को नहीं बल्कि ऑफिसर्स को भी एक शहर तो दूजे शहर दे विच आके इस्टैबलिश होना और उचेचे तौर के उत्ते इंश्योरेंस इंडस्ट्री दे विच इस्टैबलिश होना। LIC के जिन्ने भी अज तक के इत्थे ऑफिसर्स आए ने उन्हों की इस्टैबलिशमेंट विच उन्हों का बहुत योगदान रहा। गल कर रहे थे कि जिंदगी और मौत उस दे विच जो सफ़र से वो माता शकुंतला जी ने श्री प्रेम जी को सपोर्ट करके उस परिवार की फुलवाड़ी को अगे बढ़ा के जो योगदान पाया। लेकिन अगर असी देखिए तो मौत और जीवन दे विच जिहड़ा वक्त है वो सिर्फ एक साह का ही है। जे साह है तो जीवन है, जे साह नहीं है तो मौत है। और वो जीवन जो कि एक संघर्षमयी और जो इस सभ्यता या जो इंसानियत के प्रति समर्पित होंदा है उसकी उदाहरण माता शकुंतला जी ने साबित करके दी। साडा छोटा वीर नवीन प्रेम भूषण अग्रवाल जी दियां जो उन्हां दियां सर्विसिज सीगियां, जो सोसाइटी नूं उन्हां दियां देन सीगियां उसनूं अगे लैके चल रहे हैं। मैं उचेचे तौर के उत्ते समूह LIC के परिवार की तरफों, पर्टिकुलरली फगवाड़ा ब्रांच की तरफों और जलंधर डिवीजन के सीनियर DM साहब सरदार कपूर सिंह जी की तरफों इस परिवार नूं इस दुख की घड़ी दे विच उचेचे तौर पर शामिल होकर वो दुख साझा करते हैं और परमात्मा अगे अरदास करते हैं कि वो माता शकुंतला जी को अपने चरणों के विच स्थान बख्शे। शकुंतला PB अग्रवाल जी मेरी नानी माँ थे। मैं उनका फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ द फैमिली जो कहते हैं, फर्स्ट ग्रैंडसन। सो शी हैड ए स्पेशल प्लेस इन हर हार्ट फॉर मी एंड फॉर ऑल द ग्रैंड किड्स। जितना उन्होंने हमें पैम्पर किया होगा या हमें जितना प्यार दिया होगा, हमें ये पता लगा कि बचपन कितना सुंदर हो सकता है, वो हमारी नानी माँ ने हमें दिखाया। बचपन में हम जब छोटे थे, कोई हमारी बात सुने या ना सुने, नानी माँ हमेशा सुनती थी। कोई हमें टाइम दे ना दे, बट नानी माँ हमेशा हमें टाइम देती थी। 2001 में जैसा पहले बताया गया कि वो काफ़ी बीमार हो गई थी और वो मुझसे अक्सर कहा करती थी कि मेरे पैर दबा दो, मेरे पैर बहुत दुखते हैं। हम उनके लिए ज़्यादा कुछ शायद कर ना पाए ज़िंदगी में, बट भगवान से ये प्रार्थना है कि उनको अपने चरणों में रखें, उनको मोक्ष दें और सबको ये शक्ति दे कि ये that they should bear this loss. In the end, I will only say that the world will change from year to year, the lives will change from day to day, but the love and memory of you shall never pass away. Om Shanti. मेरा नाम ऐना गोयल है। मैं अनु गोयल जी की बेटी हूँ। श्रीमती शकुंतला PB अग्रवाल जी मेरी नानी थी। मैं उनके पोते पोतियों और दोहते दोहतियों की तरफ से कुछ शब्द कहना चाहूँगी। हमारी नानी हमेशा से ही हमें बहुत प्रेम करती थी। हमें नानी के घर जाने में बहुत मज़ा आता था। वह अपनी पूरी कोशिश करती थी कि हम सब बच्चे हमेशा सुखी रहें।
वे हमारे लिए बहुत टेस्टी और लाजवाब पकवान बनाती थी और हमसे खूब सारी बातें करती थी ताकि हम बच्चे कभी भी बोर ना हों। मुझे अच्छे से याद है कि जब हम छोटे बच्चे थे तो बहुत मनमानी करते थे। हम नानी से कहते थे कि नानी, हम आपके घर तभी आएंगे जब आपके घर एसी होगा, इन्वर्टर होगा। इन सब बातों से नानी माँ कभी भी गुस्सा नहीं करती थी और कभी भी बुरा नहीं मानती थी, बल्कि हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी करती थी। हमारी नानी माँ जब भी हमारे घर आती थी तो हमारे लिए खूब सारे तोहफे लेकर आती थी। उन्हें हमारी पसंद का हमेशा ही पता होता था। जब मैं बहुत छोटी थी तो नानी बहुत दूर अपनी दोस्त कनाडा में उनसे मिलने गई थी और इतनी दूर से भी हमारे लिए खूब सारे तोहफे लेकर आई थी। आज भी मेरे पास कुछ कुछ वो फ्रॉक्स हैं जो वो मेरे लिए वहाँ से लेकर आई थी और जब मैं उन्हें देखती हूँ तो मुझे आज भी उनकी याद आती है। हम जब अपनी मम्मियों से फ़ोन पे बात करते थे तो शायद ही कभी नानी माँ का हाल पूछते थे, लेकिन नानी माँ जब भी रोज़ हमारी मम्मियों को फ़ोन करती थी तो हमेशा हमारा ख्याल पूछती थी। हमें शायद ही उनकी रोज़ाना ज़िंदगी के बारे में पता रहता था, लेकिन उनको हमारी मम्मियों के द्वारा हमारी रोज़ाना ज़िंदगी के बारे में हमेशा ही पता रहता था। हमारी नानी बहुत ही मॉडर्न भी थी। मुझे याद है कि जब कंप्यूटर नए नए आए थे तो वो हम सब बच्चों को रोज़ फ़ोन करके पूछती थी कि मुझे भी बताओ कि मैं कंप्यूटर कैसे यूज़ करूँ, मुझे भी आपकी तरह आगे बढ़ना है। कभी कभी तो हम उनका फ़ोन टाल देते थे, लेकिन वह रोज़ हमसे बात करने का इंतज़ार करती थी। इतनी अच्छी थी हमारी नानी। फिर धीरे धीरे हम सब बच्चे बड़े हो गए, लेकिन नानी माँ हमेशा हमसे छोटे बच्चों की तरह ही प्यार करती थी और हमें अपने घर बुलाती थी। धीरे धीरे हमारे परिवार में और लोग जुड़ते गए और वह नए लोग जब मेरी नानी से मिलते थे तो वह उनके स्वभाव से एकदम इम्प्रेस हो जाते थे। अभी कुछ महीने पहले की ही बात है कि मेरी मदर इन लॉ पहली बार मेरी नानी से मिली और 2 घंटे में ही वो उनके सिंपल और सोबर बिहेवियर से बिल्कुल ही इम्प्रेस हो गई और जैसे उनके स्वभाव ने उनके दिल को एक छापा सा मार दिया हो। उन्हें मेरी मदर इन लॉ को अपनी स्वर्गीय मम्मी की याद आ गई उनसे मिलके। इतनी अच्छी थी हमारी नानी। नानी माँ, आप जहाँ पर भी हो, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि आपके साथ बिताए हुए सारे पल और आपके साथ करी हुई सारी बातें हमें हमेशा याद रहेंगी और हम वो सारी बातें आगे आने वाली पीढ़ियों को भी बताएंगे। धन्यवाद। अंत दे विच दुख देण वाला जो है उसे नूं ही फिर सिमरना पैंदा है। घर घर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन, क्योंकि सदन वाला तो वही आ, उन्हें ही सदा भेजा ताई माता जी गए ने। सदन हारा सिमरिए नानक से दे अवन। उसे नूं ही जदों असीं सिमरना है जिसने सदया है, तां ही साडे मन नूं आत्मा नूं शांति मिलनी है। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, देहो सजन सीसड़ियाँ ज्यों होवे साहिब स्यों मेल। आओ फिर तो एक बार परमात्मा नाल जुड़ना करिए। तो इस तो पहला कि मैं आरती लिए प्रार्थना करा, मैं पढ़ दिया कि कुछ जो संतोष शोक संदेश आए ने और कुछ शख्सियतां साडे दरम्यान बैठिया ने। ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसीएशन तो ने, खत्तरी समाज फगवाड़ा तो हैं, प्रधान रमन नेहरा जी ने भेजा है और सनातन धर्म सभा और फेडरेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ तो प्रेजिडेंट सुदेश शर्मा जी ने भेजा है, एसोसीएटेड इंडस्ट्री तो भेजा है, श्री टी चावला जी ने गीता ज्ञान मंदिर तो शोक संदेश भेजा, साढ़े विच हाजिर भी हुए सन। बजरंग दल तो आया है शोक संदेश जी, विश्व हिंदू परिषद तो आया है, जठेरे अग्रवाल बांसल गोद सोसाइटी वालों आया है, मिशन छिन्नमस्तिका दुर्गा मंदिर कमेटी तो भी शोक संदेश आया है, आरती एसोसीएशन फगवाड़ा तो आया है, JCI फगवाड़ा एलीट तो आया है, साई पालकी मंदिर फगवाड़ा तो आया है, वरिंदर पार्क एसोसिएशन तो आया है, साई पालकी मंदिर फगवाड़ा वरिंदर पार्क तो आया है जी। सुरिंदर मित्तल जी फॉर्मर जो प्रेजाइडिंग जज सन कंज्यूमर फोरम के उत्थों आया, सेवा भारती फगवाड़ा वालों आया है। साढ़े दरम्यान मलकीत सिंह बैठे ने गोत्रा जी और विक्रम जलोटा जी भी खुद शोक सभा में हाजिर हुए ने। आओ फिर जुड़िए परमात्मा के नाल। जय जगदीश हरे